Good morning, afternoon, or evening, everyone watching this video. Basically, it's 2 a.m. over here, so it's night. So today I am going to discuss about the chapter Human Reproduction. So yes, it's an easy chapter. Of course, it's an easy chapter, but many students find it difficult to understand the NCRT, right? Because it's not like the contents are not very direct in NCRT. So in this video, I will be providing you with each and every information that you require to know about this chapter, and in this video, we will only discuss about the male reproductive system. If you want to learn about the further videos, like further topics like female reproductive system, gametogenesis, just type on the YouTube female reproductive system by Priyansh. Okay, so now today we are going to discuss about this male reproductive system in the chapter Human Reproduction. So all your doubts will be cleared about the male reproductive system. So let's get started. Okay. So first of all, what do we have to know about the male reproductive system? First and the foremost thing that comes is the location, right? Where exactly is the male reproductive system located? It is located in the pelvic region. Okay, we all know that, right? So the male reproductive system is located in the pelvic region. Okay, and what does it include? What is it that it includes? So the male reproductive system, it includes a pair of testes. Okay, what is it? A pair of testes. Now, one of the testes from the pair of testes has been drawn on your screen, as you can see. I'll be discussing in detail about this diagram. Let me first tell you what all other things are there in the male reproductive system. So first, the pair of testes. Okay. Second, accessory ducts. Third, accessory glands. Fourth, external genitalia. Don't worry, we'll be discussing about all of these in detail. So the first thing that is included in the male reproductive system is the pair of testes. Is the pair of testes. So here is a diagram of testes drawn. Okay. Now, what can you see over here? What exactly can you see over here? The first thing that you can see are the layers. When we try to penetrate inside this testes, the first thing that we have to penetrate through are the layers of these testes. The first layer that we come across, this orange one, is nothing but tunica vaginalis. I've written it over here, tunica vaginalis. I'll underline it as well. Okay. The second layer that we come across, this one. The second layer that we come across is that of tunica albuginea. Okay. This is the second layer. And the third layer that we come across, this one, is the one of tunica vascularis. So these are the three layers of the testis. Okay. Now after this, we penetrate a little further inside the testis. Like we started from the outside, right? We started to penetrate from the outside, and we penetrated through the layers. We have talked about the layers, like only the names of the layers. I'll be telling you in detail about these layers as well. Now we have penetrated through the layers. What else? What do we see when we enter inside the testis? Now we have entered inside the testis. As we have entered inside the testis, we are able to see these kind of structures. These kind of structures, we are able to see these kind of structures. What are these? These are nothing but testicular lobules. These are the testicular lobules. Now as you can see, okay, the lobules have been cut. Wait, yes, so these structures are nothing but that of the testicular lobules. Now there are some spiral structures which are visible inside these testicular lobules. What are they? Basically, this is a testicular lobule. This red thing is a testicular lobule, and the yellow thing inside this testicular lobule, the spiral. Oops, sorry. Oh my God. Yeah.
Yes, so this yellow structure, the spiral structure inside the testicular lobule, is nothing but the seminiferous tubule. What is it? It is nothing but seminiferous tubule. I've written it over. Okay. So the spiral structure inside the testicular lobule is nothing but the seminiferous tubule. Just remember the names for now, because when we will discuss about all these things in detail, you'll be able to understand more about them. Just remember the names. Okay. Now we started to we started to penetrate inside the testis. First of all, we encountered the layers. First was the tunica vaginalis, then tunica albuginea, then tunica vascularis, and then we saw some compartment-like structures. These compartment-like structures, what are these? Testicular lobules. And we are able to see some spiral structures inside the testicular lobules as well. What are these? Seminiferous tubules. Now let's enter a little further in the testis. What is this? What is this? This is nothing but rated testis. What is it? It is rated testis. Okay. Now what is what is this square shaped structures that I have drawn inside, depicting the rated testis? These square shaped structures are nothing but depicting that the rated testis has a net-like structure. Okay, have you seen a net? Have you ever seen a fishing net? So a net has, small squares drawn inside of it. That is exactly how rated testis looks like. Okay, so it has this these small squares, using which I have depicted the structure of the rated testis, because the rated testis has a structure similar to that of a net. So it has a net-like structure. Okay, now moving further, after the rated testis, we encounter these tube-like structures, a lot of numerous tube-like structures. What are these? These are nothing but vas efferentia. What are these? Vas efferentia. I have written it over here. You just have to remember the name for now, because I will be talking about them in detail. Okay. Now, after the vas efferentia, we encounter this spiral structure, this highly coiled structure. What is it? It is nothing but epididymis. What is it? Epididymis. Now, this epididymis has three further parts, right? The three parts in which it has been divided, which are caput, the head part, the uppermost part; corpus, which is the middle part; cauda, which is the last part, or the tail part. Okay, so these are the three parts of the epididymis. After the epididymis, so now this entire structure depicts the ewlet, isn't it? So this entire structure is a U-shaped structure. So after completing the epididymis, we enter into a structure called vas deferens, which moves somewhat like that, which moves something like it is going like that, and then it goes upwards, right? So this was the entire depiction of the diagram of the testis. Let us now discuss about each and everything which is written on this diagram of the testis. Okay, so let's discuss about each and everything. First of all, we are going to start with the layers, of course, because while we were entering the testis, the first thing that we encountered were the layers. So first we'll be discussing about the layers. What is the first layer? What is the name of the first layer? First of all, the name of the first layer, which was the outermost layer, was tunica vaginalis. Okay, now this layer, tunica vaginalis layer, this is responsible for protection. It protects the testis. The second layer, or the middle layer, was that of tunica albuginea. Now this tunica albuginea layer, it is made up of fibrous connective tissue. Hence, it is also known as a fibrous layer. You need to remember this. It's very easy. Just remember that. Okay. After this, the third layer, or the innermost layer that we encountered, was that of tunica vascularis. What was that? It was nothing but the tunica vascularis.
Now, this layer of tunica vascularis, it has a network of capillaries. What does it have? It has a network of capillaries. As I've written it over here. And then we encountered the rated testis, as I've already told you that it has a net-like structure, and we also depicted that net-like structure using the square shapes. Okay. Now, before moving further and discussing about the several other structures that we saw, like the testicular lobules and the seminiferous tubules, etc., before discussing about them, let us first talk about the location of this testis. Where is this located? When I told you all that the location of the male reproductive system is in the pelvic region, then you all must have also thought that, okay, the male reproductive system is located in the pelvic region and the male reproductive system includes the testes, so testes should also be located in the pelvic region. But that is not the case. Testis is not present inside the body. Okay, if this is the body of a human male, the testes are not present outside but are present outside the body of a human male, and they are present in pair. Okay, they are present in a pair. There are two testes which are located outside the body of a human male. And there is a reason that why is it so? Why are these testes located outside the body of a human being? The reason is basically, you will be studying about this in this chapter only, in this chapter only, further discussion, that why are the testes located out, like the core reason is that these are responsible for the production of sperms. Okay, so the sperm production, it takes place inside the testis. You must have studied it in 10th standard. Okay, so sperm production, it takes place inside the testis, and for that sperm production to take place inside the testis has to be provided with a particular temperature. Okay, only at that particular temperature, the spermatogenesis, also known as the formation of sperms, will take place. Only at that particular temperature. And that particular temperature can only be provided to that testis outside the body of a human male. Because if that testis will be located inside the body of a human male, inside the um, abdominal cavity of the human male, then that testis will be provided with a little higher temperature as as the temperature required for the spermatogenesis to take place. Because the temperature which is required for the spermatogenesis to take place is 2 to 2.5 degree Celsius less than the body temperature. Okay, so the temperature, जो temperature required है spermatogenesis के लिए, that temperature is 2 to 2.5 degree Celsius less than the body temperature. And that temperature, वो temperature तभी provide हो सकता है जब वो testis body के बाहर present. ठीक है, अगर वो टेस्टिस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा एज कंपेयर टू द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस तब नहीं हो पाए अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर. ठीक है, सो दिस वाज द रीजन व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नाउ another thing, testis is not just located like that. Okay, एक free testis की तरह located नहीं होता है human body के बाहर. It is located inside a pouch like structure called scrotum. Okay, so if this is a testis, it is covered by a pouch like structure, or basically it is located inside a pouch like structure known as scrotum. Okay, so this dark blue structure that I've drawn is nothing but scrotum, and the light blue structure is the testis. Okay, so the testis, it is located inside the scrotum, and that's so outside the body of a human male. Okay,
So scrotum is nothing but a covering shield to protect the testes. It's like um, take a ball and put it inside a, a cloth or a polythene and cover it up. That's exactly how it looks like. Okay, that's exactly how the scrotum covers the testes. Okay, so this was the discussion about the location of the testis and why is it located outside the body of the human. Next, we shall discuss about the further things which are present inside the testis. What were the further things which were present inside the testis? Testicular lobules. Okay, so we have discussed about the layers of the testis: tunica vaginalis, tunica albuginea, and tunica vascularis. Now we shall discuss about the further things that we saw when we entered a little more inside the testis. What did we see? We saw testicular lobules. What did we see? Testicular lobules. Now, the testicular lobules, basically each and every testis consists of around 250 compartment-like structures called testicular lobules present inside of it. हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर कुछ स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर्स थे, है ना. Some spiral shaped structures or highly coiled structures basically were present inside the testicular lobules. What were they? What were those highly coiled structures or spiral structures? Those structures were nothing but seminiferous tubules. Now, I told you that testis is the place where sperm production takes place. But where exactly inside the testis? Where? कहाँ पर? What is the place where the sperm production takes place exactly inside the testis? That place is seminiferous tubules. Okay. So seminiferous tubules are the ones responsible for the production of sperms because sperm production takes place inside them. Okay. How exactly? How exactly? Do they contain anything important like that which helps in the production of sperms? What do they contain? Basically, if I talk about a seminiferous tubule, as you can see here, I have drawn a seminiferous tubule. This seminiferous tubule consists of a triangular structure and two small circles. This triangular structure it is consisting of is nothing but a type of cell that it consists, which is Sertoli cell. And these two small circles are nothing but the male germ cells, also known as the spermatogonia. So basically, seminiferous tubules के अंदर दो प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. पहला टाइप का जो सेल seminiferous tubule के अंदर प्रेजेंट होता है, that is nothing but Sertoli cell. That is nothing but Sertoli cell. Sertoli cells are also known as the nurse cells. Why? I'll just tell you in a bit. And the second type of cell that is present inside the seminiferous tubule are the male germ cells, also known as the spermatogonia. Now these male germ cells, इनके नाम देखो, male germ cells. मेल जर्म सेल्स, दूसरा नाम देखो स्पर्मेटोगोनिया. क्या लग रहा है? नाम से क्या लग रहा है? नाम ही पढ़ के लग रहा है कि these are the cells which will further differentiate to form sperms. Spermatogonia, male germ cells. राइट. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ऑल्सो नोन एज द मेल जर्म सेल्स, ये मियोटिक डिविजन्स अंडरगो करते हैं और फॉर्म करते हैं स्पर्म. क्या फॉर्म करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. खुद ही ये मेल जर्म सेल्स खुद ही मियोसिस अंडरगो करके खुद को स्पर्म में बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. और जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका दूसरा नाम है नर्स सेल्स. क्यों?
क्योंकि उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये जो सर्टोरी सेल्स हैं ये इन मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, खाना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए सर्टोरी सेल्स को नर्स सेल्स बोला जाता है। ठीक है, नर्स, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं हमारा देखभाल कौन करता है? नर्स करती है ना। तो नर्स हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना, हमें देखभाल करती है। तो बेसिकली सर्टोरी सेल्स का वही काम है, वो अपने मेल जर्म सेल्स को अपने बच्चे की तरह अपने पेशेंट की तरह मान रही है, बच्चे की तरह नहीं, अपने पेशेंट की तरह मान रही है, और वो खुद एक नर्स की तरह काम कर रही है सर्टोरी सेल्स, इसलिए सर्टोरी सेल्स को नर्स सेल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये जो लेडिक सेल्स होते हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है, इनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स इसलिए है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल स्पेस होता है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इन चारों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोरी सेल और मेल जर्म सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, तो इन चारों के अंदर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सर्टोरी सेल और मेल जर्म सेल। अच्छा, इन चारों के बीच में जो ये खाली जगह है, ये जो खाली खाली जगहें हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, और इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट है हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स। जो मैं येलो कलर से डिपिक्ट कर रही हूँ ये है हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स, ऑल्सो नोन एज द लेडिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लेडिक सेल्स ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। हम इन सभी सेल्स के बारे में, सर्टोरी सेल, मेल जर्म सेल और लेडिक सेल्स के बारे में अभी डिस्कशन करें। सबसे पहले तो लेडिक सेल्स। चलो सबसे पहले लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स के बारे में मुझे तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी है, उससे पहले थोड़ा सा ही जान लो। इसमें तो वही लिखा है, लेडिक सेल्स के बारे में यही लिखा है कि इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। क्यों होते हैं लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स? क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, यानी खाली जगह में प्रेजेंट होते हैं। उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहां पर सर्टोरी सेल और मेल जर्म सेल प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि ये लेडिक सेल्स सर्टोरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बात करते हैं। मैं लेडिक सेल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले हम मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, जो मैंने बताया वही अभी तुम्हें जानने की जरूरत। क्या बताया मैंने? कि जो ये मेल जर्म सेल्स होते हैं ऑल्सो नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल्स मियोसिस नाम का प्रोसेस अंडरगो करते हैं। मियोसिस एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन वाला जो प्रोसेस होता है, जो तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, मियोसिस प्रोसेस, ये मेल जर्म सेल्स अंडरगो करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया इनका दूसरा नाम है, अंडरगो करते हैं, और एंड प्रोडक्ट जो इनका होता है वो होता है स्पर्म। ठीक है, ये मियोसिस का पूरा प्रोसेस अंडरगो करने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो तुम्हें कहानी समझ आ रही है एग्जैक्टली हो क्या रहा है? एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लाइक कितनी फैसिनेटिंग है। लाइक दिस इज अ टेस्टिस, इस टेस्टिस के अंदर देयर आर कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन कंपार्टमेंट के अंदर देयर आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, माइंड यू, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जो मैंने स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बनाया था ना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, वो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 से अधिक नहीं हो। ठीक है, तो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक मेल जर्म सेल नाम का एक सेल, जो कि मियोसिस अंडरगो करने के बाद उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। लाइक वाओ, isn't it fascinating? तो फिर
स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है मियोसिस का प्रोसेस अंडरगो होने के बाद। स्पर्म का एक और नाम होता है, there's one more name given to the sperm and that is spermatozoa। ठीक है, यहाँ पे I have written about it, spermatozoa, okay, sorry, spermatozoa is nothing but another name given to the sperm। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। अभी बस इतना जान लो कि ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ये मियोसिस अंडरगो करते हैं और फॉर्म करते हैं स्पर्म, आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं इन सर्टोली सेल और लेडिंग सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल। ठीक है, सर्टोली सेल के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी दे दी कि एग्जैक्टली सर्टोली सेल्स क्या होते हैं। नर्स सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? नर्स सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्राइमरी काम होता है मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और देखो अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो सर्टोरी सेल्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उस एंजाइम का नाम होता है एरोमेटेज। ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है एरोमेटेज, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दे सिक्रीट एरोमेटेज व्हिच बेसिकली कन्वर्ट्स एंड्रोजन्स टू एस्ट्रोजन्स। तो ये जो एंजाइम रिलीज होता है सर्टोली सेल के द्वारा, इस एंजाइम का मेन फंक्शन है एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट करना। एंड्रोजेंस क्या होता है? एंड्रोजेंस एक मेल हार्मोन, और मेन एंड्रोजेंस क्या है? मेल हार्मोन। मेल हार्मोन यानी कि ह्यूमन मेल के बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन इज मेल हार्मोन। कौन सा? एंड्रोजन। अब ये जो एंड्रोजन होता है इसका एक मेन टाइप कौन सा होता है? मेन टाइप यानी सबसे महत्वपूर्ण टाइप ऑफ सबसे ज्यादा जो मेन टाइप ऑफ जो एंड्रोजन्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? वो कमेंट सेक्शन में लिखो अभी, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन एंड्रोजन। ठीक है, तो जो सर्टोली सेल्स होता है वो एक टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज करता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? एरोमेटेज, जो कि कन्वर्ट करता है एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन। ठीक है, अब ये जो सर्टोली सेल है इसने एक एंजाइम तो रिलीज कर दिया और उस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज। ये एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं, सर्टोली सेल्स एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं और उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन, और एक और हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन का नाम है एक्टिविन। ठीक है, तो ये जो इनहिबिन नाम का हार्मोन है इसका क्या काम है? देखो हम तुम सबने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रखा है क्लास 11 स्टैंडर्ड। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में तुमने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा है। तो एग्जैक्टली बेसिकली क्या होता है? देखो ये जो सर्टोरी सेल्स है इसने सिक्रीट किया हार्मोन इनहिबिन। अब ये जो इनहिबिन नाम का हार्मोन है ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उस ग्लैंड को बोलेगा एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन रोक दो, बंद कर दो। एफएसएच कौन सा हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी तुमने 11th में पढ़ा था। तो ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा एफएसएच नाम का हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन को रोक दो, और जो हार्मोन है एक्टिविन वो भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ही जाएगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि एफएसएच नाम का हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा दो, उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? जब भी हमारे बॉडी में एफएसएच चाहिए तो क्या होता है? जो सर्टोरी सेल्स हैं वो एक्टिविन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। ये एक्टिविन नाम का हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, उसे सिग्नल्स भेजता है कि तुम्हें एफएसएच का रिलीज इंक्रीज करना है। हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एफएसएच का इंक्रीज को रिलीज करते, सॉरी एफएसएच के रिलीज को इंक्रीज करते। और जब भी हमारे बॉडी में ऐसे हो जाता है कि ओके एफएसएच बहुत सारा आ गया है हमारी बॉडी में, अब हमें एफएसएच कम करना है, अब हमें एफएसएच का रिक्वायरमेंट नहीं है, जब उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता तब सर्टोरी सेल्स, हमारे जो सर्टोरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अभी जो नॉट हमारे आई मीन
मेल्स में जो सर्टोरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एफएसएच के जो ये सर्टोरी सेल्स होते हैं वो इनहिबिन नाम के हार्मोन को का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज कर देते हैं, और ये जो इनहिबिन नाम का हार्मोन है ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि एफएसएच का रिलीज को रोक दो या कम कर दो। ठीक है, जब हमारी बॉडी में, यानी मेल्स की बॉडी में, सॉरी मेल्स की बॉडी में जब एफएसएच चाहिए होता है तो एक्टिविन, और जब नहीं चाहिए होता तो इनहिबिन। ठीक है, तो इस तरह से सर्टोरी सेल्स वर्क करते हैं, इस तरह से सर्टोरी सेल्स का काम होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे सेल्स के बारे में जो कि है लेडिक सेल्स, ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट थे, यानी कि खाली जगह में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं, एकदम सही बात है। और इंटरस्टिशियल स्पेस में एक और चीज पाई जाती है और वो क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल्स। स्मॉल ब्लड वेसल्स भी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं अलोंग विद द लेडिक सेल्स। ठीक है, अब ये जो लेडिक सेल्स होते हैं इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो क्या है, इन लेडिक सेल्स पर लेडिक सेल्स को एलसी से मैं डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, लेडिक सेल्स, इन लेडिक सेल्स पर एलएच नाम का हार्मोन एक्ट करता है। ठीक है, ये एक हार्मोन है एलएच, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तुमने इस हार्मोन के बारे में 11th में पढ़ा है। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग, ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, और ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करके क्या बोलता है लेडिक सेल्स को, तुम जल्दी से एंड्रोजेंस रिलीज कर दो। तो क्या होता है, ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये क्या रिलीज कर देते हैं, एंड्रोजेंस रिलीज कर देते हैं। ए से डिनोट करियो एंड्रोजन को। और जो मेन एंड्रोजन होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले पूछा था, मेन एंड्रोजन इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये जो एलएच है यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और लेडिक सेल्स को बोलता है एंड्रोजेंस को जल्दी से रिलीज कर दो। एंड्रोजेंस को रिलीज करने का मतलब है टेस्टोस्टेरोन बेसिकली रिलीज कर दो। ठीक है, मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, क्यों रिलीज करना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिलीजिंग एंड्रोजन। बेसिकली ये जो एंड्रोजन होते हैं और जो मेन एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इनका मेन फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना। और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्रमोट हो रहा है तो एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से मेल बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दैट्स अ गुड थिंग, राइट। क्योंकि अगर मेल इज यंग, प्यूबर्टी अटेन किया है, इज यंग, तो उसके बॉडी में जो स्पर्म काउंट होगा दैट विल ऑब्वियसली बी वेरी हाई एज कंपेयर टू एन ओल्ड मैन। ठीक है, एक ओल्ड मैन का जो स्पर्म काउंट होगा दैट विल बी वेरी लेस, एंड हेंस दे बिकम इनफर्टाइल आफ्टर अ सर्टेन एज। ठीक है, तो बेसिकली ये लेडिक सेल्स का भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये एंड्रोजेंस रिलीज करते हैं, और जो मेन एंड्रोजन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, हमने टेस्टिस के लेयर्स के बारे में बात कर ली, हमने टेस्टिस में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बारे में बात कर ली, हमने टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात कर ली, और हमने उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी बात करी। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्टोरी सेल, मेल जर्म सेल्स, और जो सेल उसके बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जो सेल्स बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, कौन सी सेल्स, लेडिक सेल्स, ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, हमने उनके बारे में भी बात कर ली। अब थोड़ी सी बात स्क्रोटम के बारे में करते हैं। ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम के अंदर इस तरह से पैक्ड है। ठीक है, ये जो स्क्रोटम है इसके जो मसल्स उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्क्रोटम के जो मसल्स हैं, बेसिकली स्क्रोटम के पास 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट है। पहला जो मसल है स्क्रोटम का दैट इज द क्रीमास्टर मसल, एंड द सेकेंड मसल इज नथिंग बट द डार्थोस मसल। ठीक है, ये दोनों मसल्स हैं स्क्रोटम के। इनका क्या फंक्शन है, बेसिकली इनका फंक्शन है टेस्टिस के साइज को रेगुलेट करना।
according to the temperature outside. अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर गर्मी है, तो क्या होगा, तो जो ये टेस्टिस है, आई मीन जो ये स्क्रोटम है, उसके जो ये मसल्स हैं, क्रेमास्टर मसल, डार्टोस मसल, ये एक्सपैंड हो जाएंगे. हम सबको पता है गर्मियों में मसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं, तो ये जो क्रेमास्टर मसल है, डार्टोस मसल गर्मी में एक्सपैंड हो जाएंगे. उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि स्क्रोटम का साइज इंक्रीज होगा. अगर स्क्रोटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर जो चीज पड़ी है टेस्टिस, उसका भी साइज इन टर्न इंक्रीज होगा एंड टेस्टिस बेसिकली एक्सपैंड हो जाएगा. ठीक है. एंड अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो क्या होगा कि मसल्स, तो क्या होगा कि जो मसल्स है स्क्रोटम के, दे विल श्रिंक, बिकॉज ऑफ विच द साइज ऑफ द टेस्टिस विल आल्सो श्रिंक. ठीक है. टेस्टिस का साइज भी कम हो जाएगा अगर उसके बाहर के जो पाउच है स्क्रोटम, उसके जो मसल्स हैं अगर वो श्रिंक हो जाएंगे तो स्क्रोटम भी श्रिंक हो जाएगा, टेस्टिस भी श्रिंक हो जाएगा. मूविंग फर्दर, अब when I told you कि the testis is located outside the body of a human male, then you might have definitely thought of one thing कि how did it slide out of the body, how and when, like how like how is it even possible? Like, of course it's possible because it has happened. And when, if I talk about when, basically it happens inside the mother's womb only. When the child is inside the mother's womb, at that time only जो उस child का testis होता है, it slides outside the body of the male of that baby child, and that happens during the 7th month of pregnancy. ठीक है. 7th month of pregnancy के दौरान जो testis है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्लाइड आउट कर जाता है. ठीक है. थ्रू अ कैनाल कॉल्ड इंग्विनल कैनाल. ठीक है. इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये टेस्टिस बॉडी के बाहर स्लाइड आउट करता है और स्क्रोटम पाउच के अंदर डिसेंड कर जाता है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड. 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड. और ये जो जितने भी ये जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बन जाते हैं. ठीक है. यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही ये जेनिटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट इन फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही टेस्टिस बाहर नहीं चले जाएंगे, तब तक वो बॉडी के अंदर ही होते हैं. बट ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, these testes they descend outside the body of this human male and descends into the pouch-like structure called scrotum. ठीक है. अब you might be wondering, क्या ऐसा कोई कंडीशन होता है कि टेस्टिस नहीं जाते बाहर, निकलते ही नहीं है बाहर बॉडी के? यस, होता है. इट्स अ कंडीशन, ये कंडीशन है. एंड ये जो कंडीशन है बेसिकली, इसमें जो टेस्टिस होता है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर नहीं निकलता है. ईदर वन और बोथ द टेस्टिस ह्यूमन मेल के बाहर नहीं निकलता है एंड स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं करता है थ्रू इंग्विनल कैनाल. एंड दिस कंडीशन इज नथिंग बट क्रिप्टोरचाइडिज्म. ठीक है. यहाँ पर मैंने क्रिप्टोरचाइडिज्म के बारे में लिखा हुआ है, so you can read about it. मैंने उसी को मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया जो मैंने यहाँ पे लिखा. Okay. Next, we are going to now complete the male reproductive system in a while. ठीक है. It's we have covered like the 90% of male reproductive system has been covered. Now थोड़ा सा part on छोटा सा part ही बचा है. So let's finish it off. सबसे पहले तो what is semen? Sorry. सबसे पहले तो what is semen? Semen is nothing but sperms along with the secretion of the glands. Secretion of what glands? Accessory glands. If these are the testes, and the sperm production is taking place inside these testes, and these sperm, they come out of the testes, they get formed of, obviously they'll not stay there, they will come out. And these sperms, they come out of these testes and enter into the epididymis, and then the
vas deferens, and okay, so these sperms, okay, one additional information, the sperms get stored in the epididymis. Okay, so epididymis is a storing place of sperms. So these sperms, they come out of the testis from through the while traveling through the epididymis, and then while traveling through the vas deferens, and then it basically reaches into the external genitalia. Now, before reaching this external genitalia, it had to pass through the accessory glands. Okay, now basically these accessory glands, they will secrete their secretions. ठीक है, ये जो accessory glands है अपने secretions को secrete out करेंगे, and while the sperm is going through that path, while the sperm is flowing through that path, all these accessory glands, they will add on all their secretions to the sperm, and this sperm, along with all the secretions of all these glands, will come out through the external genitalia. Okay, so are you able to interpret what exactly is happening? Okay, so the secretions of all these glands along with the sperm is known as the semen. Okay, and now what is the path of the sperm? जैसे मैंने बताया कि जो sperm है वो it gets formed inside the testis and then it flows out. Okay, so it has to follow a path, right? Yes, of course it has to. जो मैंने सबसे पहले तुम्हें टेस्टिस का डायग्राम दिखाया था, वहां पे सबसे पहले तो चले जाओ, ठीक है, वो डायग्राम तुमने ड्रॉ किया था, तो उस डायग्राम को सबसे पहले खोल लो. तो जब स्पर्म है वो फॉर्म हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म होने के बाद वो बाहर निकला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और एंटर किया क्या, उसने एंटर किया रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस एंटर करने के बाद ये स्पर्म गया वास एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस. ठीक है, तो ये तो था हमारा पाथ ऑफ स्पर्म. क्योंकि उसके बाद जब वो आगे जाएगा तो उसे एक्सेसरी ग्लैंड्स की मुलाकात होगी, और इन एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस जब इस स्पर्म पे एड ऑन हो जाएंगे तो ये बना देंगे सीमेन, जो कि पीनिस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे. ठीक है, so this was nothing but the path of sperm, and जितने भी मैंने ducts का नाम लिया path of sperm में, वो सभी के सभी accessory ducts के अंदर पाए जाते हैं, वो सभी के सभी accessory ducts कहलाते हैं. ठीक है, अब हम accessory glands, मैंने इतना सारा बोल दिया, accessory glands के बारे में इतना बता दिया कि यार उसके secretions add on होते हैं, हम इन accessory glands के बारे में भी बात कर लेते हैं. ठीक है, 3 तरह के एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के अंदर. ठीक है, 3 तरह के एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला जो एक्सेसरी ग्लैंड है जो कि ह्यूमन मेल के अंदर होता है वो है सेमिनल वेसिकल. ठीक है, सेमिनल वेसिकल नाम का जो एक्सेसरी ग्लैंड है, ये बेसिकली एक सिक्रीशन करता है फ्रक्टोज का. फ्रक्टोज के बारे में तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, या फिर तुमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ही पढ़ा है 11th क्लास. ठीक है, तो ये जो फ्रक्टोज है ये क्या है? बेसिकली एक मोनोसैकेराइड है. ठीक है, जस्ट लाइक ग्लूकोज. तो ये जो फ्रक्टोज होते हैं ये सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस होते हैं. सेमिनल वेसिकल इसको सिक्रीट करता है. इस फ्रक्टोज का काम क्या है? चलो इंपॉर्टेंस बता दो. मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसको स्विम करना है, स्पर्म को वेजाइनल ट्रैक्ट में स्विम करके जाना है एग के पास, तो उसे एनर्जी चाहिए उसके लिए. ठीक है, तो वो एनर्जी उसे प्रोवाइड कौन करता है? सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड. सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस, नॉट सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशंस कौन से सिक्रीशंस? फ्रक्टोज वाले सिक्रीशंस. ठीक है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रीट करता है? फ्रक्टोज, जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन सेमिनल वेसिकल का ये है कि ये जो सेमिनल वेसिकल होते हैं, इनका जो सिक्रीशंस है फ्रक्टोज, ये बेसिकली हेल्पफुल होते हैं रेप विक्टिम्स को डिटरमाइन करने के लिए. कैसे रेप विक्टिम्स को डिटरमाइन करने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब when a person is raped, when a girl is raped, तब उसके वजाइना में फ्रक्टोज पाया जाएगा, because vagina of a female does not secrete fructose. It is only secreted by the male reproductive system.
and if a fructose is found in the vagina of female, she has been raped. Okay, that is how we test the victims of the rape cases. The next gland that we talk about in the accessory glands of the male is nothing but the prostate gland. ठीक है, हमने सेमिनल वेसिकल पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं यानी बेसिक होते हैं। बेसिक होते हैं इसका क्या मतलब है, इसका रीजन क्या है? बेसिक होते हैं यानी अल्कलाइन होता है। इनका रीजन ये है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखो मेल जो है उसका अगर ग्लैंड का सिक्रीशन अल्कलाइन होगा तो फिर वो वजाइना के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वजाइना का जो मीडियम है दैट इज एसिडिक, एंड अगर मेल का सिक्रीशन विल बी बेसिक तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही काम है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस का, जो कि अल्कलाइन होते हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं ये स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए भी काम करते हैं, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम। तीसरा जो एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज नथिंग बट द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, आल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड, इसका क्या काम है, ये बेसिकली एक विस्कस म्यूकस सिक्रीट करता है जो कि एक ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है और स्पर्म के ल्यूब्रिकेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये डायग्राम तुम अपनी नोटबुक्स में एज इट इज ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये स्पर्म ऐसे उड़ते उड़ते जाता है और पीनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, बेसिकली इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म यहाँ से जाता है और पीनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो ये पीनस है उसका यहाँ पे मैंने बनाया है कि जो पीनस है उसके दैट इज कवर्ड बाय a layer that is nothing but foreskin, also known as the prepuce. ठीक है, this is a layer of the foreskin or the prepuce which covers the penis, okay, the outer layer of the penis. ठीक है, अब जो मैंने जितने भी एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम बताए तुम्हें, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन सभी के सिक्रीशंस को मिला के बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। Just remember that, it's important. Okay, seminal plasma, इन सभी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को मिला के बोला जाता है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, कि देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर किस तरह से एक स्पर्मेटोगोनिया, आल्सो नोन एज द मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तुम्हें दिख रहा है ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसने मियोसिस अंडरगो किया है। यहाँ पे देखो, जब ये मियोसिस अंडरगो कर रहा है यानी रिडक्शनल डिवीजन अंडरगो कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर इसने यहाँ पे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर उसके बाद जाके इसने स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन किया। तो बेसिकली यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, मियोसिस यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे तुम्हें देखो सर्टोली सेल्स भी देखने को मिल रहा है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो दो प्रकार के सेल्स थे, कौन से, सर्टोली सेल एंड मेल जर्म सेल, हमें वो दोनों सेल्स यहाँ पे देखने को मिले। अच्छा, लेडिक सेल्स का क्या हुआ? लेडिक सेल्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होता है ना, अंदर थोड़ी। तो ये वाली जगह है जहाँ पे मैं ग्रीन कलर का सेल्स बना रही हूँ, यहाँ पर ये ग्रीन कलर के जो सेल्स हैं दीज आर नथिंग बट द लेडिक सेल्स, और ये जो जगह है जहां पर ये ग्रीन वाले सेल्स मैंने बनाए हैं दिस इज नथिंग बट interstitial space, and these Leydig cells are also known as the interstitial cells. तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है, एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में गेमेटोजेनेसिस, और इसी तरह से हम चैप्टर को फिनिश करेंगे फर्दर वीडियोस में। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस के बाद हम वो प्रेगनेंसी वाला पार्ट पढ़ लेंगे, एंड उसके बाद हम पार्चुरेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।